اور قرآن کے جلال کے لیے زور سے اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں. کیونکہ یہاں خدا کے جلال کے ہیں، خدا کے آدم کے لیے، خدا کے کلام کے لیے ہم سب خدا کا شکر ادا کریں گے، کیونکہ خدا کے آدم دو چار عزت کے لائق ہے. تو ہم ان کو یہاں ویلکم کہتے ہیں اور آپ کے ہاتھوں کے استعمال کے ساتھ خدا کے ہاتھوں جن کے پاس کلام خدا ہے میرے ساتھ کھولیں یہ حضرامہ. اس سے پہلے خدا کے خالق کلام خدا کو بیان کرنے کے لیے آئیں. میں حضرامہ تسلیتوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط اس کا 5واں باب ان کے پاس کلام خدا ہے میرے ساتھ کھولیں. نیا حضرامہ مقدس پولس رسول کا خط تسلیتوں کے نام پہلا تسلیتیوں 5واں باب آیت 12 24 تک کلام خدا میں سے سنیں گے. کلام خدا میں یوں لکھا ہے، اور اے بھائیو ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ جو تم میں محنت کرتے اور خداوند میں تمہارے پیشوا ہیں اور تم کو نصیحت کرتے ہیں انہیں مانو اور ان کے کام کے سبب سے محبت کے ساتھ ان کی بڑی عزت کرو. آپس میں میل ملاپ رکھو. اور اے بھائیو ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ، کمزوروں کو دلاسا دو، کمزوروں کو سنبھالو، سب کے ساتھ تحمل سے پیش آؤ. خبردار کوئی کسی سے بدی کے عوض بدی نہ کرے، بلکہ ہر وقت نیکی کرنے کے ڈرتے رہو. آپس میں بھی اور سب سے ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکرگزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. روح کو نہ بجھاؤ، نبوتوں کی حقارت نہ کرو، سب باتوں کو آزماؤ، جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو، ہر قسم کی بدی سے بچے رہو. خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کی آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں. تمہارا بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا. کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. مسیح خداوند کے پاک مبارک نام میں آپ کی سلامتی ہو. ہلیلویا. ہم عزت جلال اپنے خدا کو دیتے ہیں جو بے حد عزت، عظمت، بزرگی اور جلال کی لائق ہے، جس نے آج صبح ہم کو بیدار کیا، خدا کے گھر میں آئے، اپنے خدا کی پرستش کی اور اس کے نام کو عزت دی. مبارک خدا. اور یہ خدا کا رحم ہے. خدا کا خادم ہوتے ہوئے اس بات کو مانتا ہوں، جانتا ہوں کہ ہر ایک کو خدا توفیق نہیں دیتا نہ اپنے گھر میں آنے کی اور نہ اپنی تعریف کرنے کی. انہی کو جن پر وہ رحم کرتا ہے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے. تو خدا مبارک کو. ساری عزت، سارا جلال ہم خدا کے پاک نام کو دیتے ہیں. ہمارے لیے تلاوت کی گئی ہے، غور کریں گے. جن کے پاس بائبل مقدس ہے ضرور کھولیں، اور جب پڑھا جائے تو اس پر نظر رکھیں تاکہ ہمیں یہ باتیں یاد رہیں.
पौलुस रसूल का खत थिस्सलुनीकियों के नाम, उसका 5वां बाब और उसकी 12 आयत से 24 आयत तक हमने तलावत सुनी है। हम पूरी तवज्जो करें, ईमान रखते हैं, अगर ध्यान करेंगे, तवज्जो से सुनेंगे तो बरकत लेकर जाएंगे। इसलिए लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। तो मुबारक खुदा, पूरी तवज्जो करें जो हमने पढ़ा है। 12वीं आयत में हमने पढ़ा है, ऐ भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं। ये दरख्वास्त कौन करता है? ये दरख्वास्त खुदावंद यीशु का खादम रसूल पौलुस इस खत को लिखता है। रसूल पौलुस के बारे में मुखालिफीन जो लोग हैं, उनकी एक राय है। वो कहते हैं ये खुद से बातें करता है और ये भी कहते हैं कि ये जो मसीही दीन है, ये जो मसीही मजहब है, ये पौलुस की आजाद है, उसने आजाद किया है। मगर हम खुदा के खादम होते हुए मुकम्मल जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहते। हम कहते हैं कोई पौलुस की ऐसी बात बताओ जो रसूलों ने ना कही हो, जो यीशु मसीह ने ना कही हो, और कोई नई तालीम पौलुस ने दी हो, तब तो कह सकते हैं कि ये इसका दीन है। और अगर वो वही कहता है जो उसने यीशु से सुना है, जो रसूलों से तालीम पाई, तो फिर ये दीन पौलुस का नहीं, बल्कि ये लोग बुलाए हुए हैं और इनको यीशु मसीह ने अपनी बादशाहत के लिए बुलाया है। हालेलुया। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, मुखालिफों को हर वक्त जवाब देने के लिए मुस्तहिद रहा करो, इल्म के साथ और खुदा के खौफ के साथ। तो हम पढ़ें, खुदा का कलाम यूं कह रहा है कि खुदा के खादम पौलुस ने ये दरख्वास्त की कि ऐ भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं, तुम में जो मेहनत करते हैं, खुदावन में तुम्हारे पेशवा हैं, जो मेहनत करते हैं और जो तुम्हारे पेशवा हैं। पेशवा कहते हैं रहनुमाई करने वाला, सिखाने वाला, और जिस तरह खुदावन के खादमों को पेशवा कहा जाता है, तो ये खुदा के कामों के लिए तुमको नसीहत करते हैं। जो खादम खुदा के तुम्हें नसीहत करते हैं, जो पेशवा नसीहत करते हैं, उनको मानो। ये जुमला जो मानो है, इसमें वजाहत है। इसका मतलब है उनकी इज्जत करो, जो वो कहते हैं उस बात पर तवज्जो दो और उस पर अमल करो। उनकी बात मानो, जो वो कहते हैं उनकी बात मानो। और आगे लिखा है, और उनके काम के सबब से मोहब्बत के साथ उनकी बड़ी इज्जत करो। उनके कामों के सबब से, यीशु मसीह ने कहा था अपने शागिर्दों के बारे, अपने खादमों के बारे, तुम उनको उनके कामों से पहचान लोगे। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं लाता और बुरा दरख्त अच्छा फल नहीं लाता। जो मेरे खादम हैं वो बुरे काम नहीं करेंगे, तो उनके कामों से जानोगे कि वो मेरे खादम हैं। एक बार यीशु जा रहे थे, अपने खादमों को तालीम दे रहे थे। यीशु ने अपने बहुत सारे शागिर्दों को भेजा कि जाओ फलां फलां इलाके में, उनको बताया। और जो लूका की इंजील 10वें बाब में लिखा है, यीशु ने अपने 70 शागिर्दों को भेजा, बहुत सी नसीहतें की। एक बात तो मैं बताता हूँ, यीशु ने कहा जब तुम जहां जाओ वहां ये ना कहना कि हम यीशु के शागिर्द हैं, तो फिर क्या कहना? ये बात बड़ी मुश्किल बात है। शागिर्द यीशु के और किसी को जाके ना बताएं कि हम यीशु के शागिर्द हैं, ये वैसे ही है जैसे उनको यीशु ने एक बात और नहीं कही, जब जाओ रास्ते में किसी को सलाम ना करना। और मत्ती की इंजील 5वें बाब में यीशु ने कहा फक्त अपने भाइयों को नहीं, गैरों को भी सलाम करो।
और यहाँ यीशु ने कहा ना सलाम करना और ना उनको बताना कि हम यीशु के शागिर्द हैं, तो फिर काम क्या करना? यीशु ने क्यों कहा सलाम ना करना? ये रास्ते में टाइम जाया ना करना। सलाम वो नहीं जो हम करते हैं, आपकी सलामती हो, भाई सलाम, बहन सलाम, ये वाली सलाम की बात नहीं। बात तो रही है उस सलाम दुआ की जिसमें आधा घंटा गुजर जाता है, जिसमें 15 मिनट गुजर जाते हैं, यानी अपना टाइम ऐसी बातों पर जाया ना करें। और दूसरी बात जो यीशु ने कही अपने शागिर्दों को, वो ये थी कि लोगों को ये ना कहना कि हम यीशु के शागिर्द हैं। लोग तुम्हारे कामों से जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। खादम की पहचान, खुदा के खादम की पहचान उसकी जुबान है, उसका करदार है और उसके काम है। यही खुदा का कलाम कह रहा है कि उनके कामों के सबब जो वो करते हैं उनकी इज्जत बल्कि बड़ी इज्जत हो। हालेलुया। और खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है। अगर इसमें एक दो बात और बढ़ाऊं तो ये लिखा है जो बाइबल में लिखा है, खुदा किसी इंसान को इजाजत नहीं देता कि उसके खादम के खिलाफ हो। ये बाइबल गवाह है। खुदा जो खुदा के खादम है उनकी खुदा खुद रहनुमाई करता है, सजा जजा वो खुद देता है। मिसाल देता हूँ, हमारी पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान नेवी है। जब कोई पाकिस्तान नेवी का, आर्मी का, बड़ी फोर्सों का आप कोई ऐसा कोई गुनाह करे, गलत काम करे, तो किसी थाने को, किसी को इजाजत नहीं, उनको सजा दे या पकड़े, उसकी इत्तला उसी के अदारे में करे, वो खुद इसका हिसाब खुद करे। तो खुदा जो सबसे बड़ी आदमी है वो अपनी फौज की खुद हिफाजत करे। वो अपने खादमों की बारे में ये नहीं कहता, खुदा के कलाम में लिखा है मेरा खादम मेरे आंख की पुतली है, जो मेरे खादम को छूता है वो मेरी आंख को छूता है। खुदा के खादम खुदा की नजर में गराम कदर। आगे बढ़े, खुदा का खादम 14वीं आयत में कहता है, ऐ भाइयों हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ, कम हिम्मतों को दिलासा दो, कमजोरों को संभालो और सबके साथ तहम्मुल से पेश आओ। गौर करें, तवज्जो करें। आगे हमने पढ़ा है कि क्या करो, ऐ भाइयों हम तुम्हें नसीहत करते हैं। खुदा का कलाम हम सबको नसीहत करता है कि जो लोग बेकायदा चलते हैं, ठीक राह पर नहीं चलते, जो अपनी जिंदगी अच्छी नहीं गुजारते, उनको संभालो, उनको समझाओ, उनकी रहनुमाई करो, उनकी तरफ गौर करो। जिस तरह लिखा है, सिर्फ अपने ही पर नहीं बल्कि दूसरों के हवाल पर भी गौर करो। ये मुआशरे की जिम्मेदारी होती है। अगर हमारी एक बस्ती है, हमारा एक निज़ाम है, जिस तरह हम जहाँ रहते हैं, जिस गली इलाके में रहते हैं, तो ये हम पर फर्ज है कि हम क्या करें, उन लोगों को भी गौर करें जो लोग गलत राह पर चलते हैं, जो लोग बुरे काम करते हैं, उनको समझाएं, उनके पास जाएं, उनको देखें। बहुत सारे लोग इस बात से डरते हैं और वो ऐसा नहीं करते, मगर खुदा का कलाम हमें ये बात सिखाता है कि हमें ऐसा करना है और उनको देखना है और उनके बारे में सोचना है। आगे बढ़ते हैं तो जो लिखा है, खबरदार कोई किसी से बदी के एवज बदी ना करे, बल्कि हर बात हर वक्त नेकी करने के डर करे। कोई बदी के एवज बदी ना करे। यीशु ने कहा गाली के बदले गाली, धमकी के बदले धमकी ना दो। जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे, दूसरा भी उसकी तरफ दे दे। यही बात पारूस ने हमें सिखाई।
बदी के बदले बदी ना करो, गाली के बदले गाली ना करो। और ये वो तालीम है तो जो यीशु मसीह ने हमें दी है। और ये तालीम का फायदा क्या है? ये तालीम तो हमें छोटा बना रहे हैं। कोई गाली दे तो गाली ना दे, कोई मारे तो हम उसको आगे से मारे ना। उसी पहाड़ी वाद में लिखा है, अगर तो अपने मदई के साथ राह में है तो राह में सुलह कर ले। ऐसा ना हो कि तू अदालत में जाए और वो तुझे अदालत में जज तुझे कोतवाल के आदर हवाला करे और तू जेल में जाए। अगर हम गौर करें, लड़ाइयां, झगड़े, मुखालफतें, इनका अंजाम क्या होता? चाहे हम कितना कुछ कर ले, आखिर क्या होता है? सुलह। आखिर क्या होता है? सुलह। अदालतों में चले जाओ, पैसा खर्च करो, जेलों तक लोग जाते हैं, उस वक्त केस खत्म होता है जब सुलह होती है। तो यीशु मसीह ये पहले ही मशवरा देते हैं कि सुलह करो, ये अच्छी बात है। कोई ज्यादती करे मगर तुम उनके साथ ज्यादती ना करो। आगे लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, बल्कि 16वीं हर वक्त खुश रहो। हर वक्त खुश रहो। और ये हर वक्त खुशी, इससे मुराद क्या है? हर वक्त खुशी से मुराद ये है कि हालात कैसे भी हो, मुश्किल कैसी हो, प्रॉब्लम कैसे हो, हमें अपना ईमान, अपना रास्ता खुदा की तरफ रखना। जब हमारी निगाहें खुदा की तरफ होंगी तो फिर हमें दुख नहीं लगेगा, मुसीबत नहीं लगेगी, प्रॉब्लम नहीं लगेगी। ये सब कब महसूस होता है? जब हमारी निगाहें खुदा से हटती हैं। हर हाल, हर वक्त खुश रहो, तो इसका मतलब है दुख में भी और सुख में भी खुश रहो। और ये एक बड़ा सबक है, दुख में खुश होना। जब हम दुख में खुश होते हैं तो इब्लीस को तमाचा लगता है। जब हम पर मुसीबतें आती हैं, मुश्किलें होती हैं, प्रॉब्लम होते हैं, उस वक्त इब्लीस खुश होता है। और वो क्या सुनना चाहता है? जब हम मुश्किल में होते हैं, बीमारी में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, इब्लीस बिल्कुल करीब आ जाता है और वो सुनना चाहता है, मेरे खुदा ने मुझे छाड़ देता है, खुदा भूल गया है, हम उसको याद नहीं। तो इससे इब्लीस क्या करता है? खुश होता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा उस पर हंसेगा, इब्लीस पर। मगर जब हम परेशान होते हैं, टेंशन लेते हैं, कोसते हैं, खुदा ने छोड़ दिया, उस वक्त इब्लीस खुदा को देखकर खुश होता है। इसका सबूत मैं आपको दूं। जब हम सैमुएल नबी की किताब पढ़ेंगे, दाऊद से गुनाह हो गया तो खुदा ने दाऊद के पास अपने नबी को भेजा, नातन नबी को। नातन नबी ने दाऊद से कहा, तूने ये गुनाह किया, खुदा ने तेरे लिए सजा रखी है। 3 सजाएं थी, मगर मैं आता हूं अपनी बात पर। खुदा ने कहा, ये सजा मैं तुझे इसलिए देता हूं, तूने मेरे दुश्मनों को कुफर बकने का मौका दिया। इसका मतलब क्या है? जब हम गुनाह करते हैं, गलती करते हैं और बेदिल हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, तब इब्लीस खुदा की तरफ देखकर हंसता है और वो कहता है, ये लोग तेरे से खुश है नहीं, ये तेरी बंदी तुझसे खुश है, ये तेरा बंदा तुझसे खुश है नहीं, ये मेरे लोग हैं, ये मुझसे खुश होते हैं। तो जब हम गम में, मुसीबत में, तंगी में खुश होते हैं और कहते हैं, खुदा हालात कैसे भी हैं, मेरा ईमान है तू अच्छा करेगा, तू मेरे साथ है, मेरा ईमान है, ये मुश्किल आज है, कल जाएगी, कल अच्छी आएगी। उस वक्त इब्लीस के ऊपर तमाचा लगता है और खुदा हंसता है और खुदा कहता है उस पर। तो हमने दुनिया में रहकर खुदा की मर्जी को पूरा करना है। यही आगे लिखा है, बिना नागा दुआ करो और हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि यीशु मसीह की तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है।
यसु मसीह खुदा बाप की मर्जी पूरी करने के लिए आया और मर्जी ये है हर हाल में खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर रोज दुआ करो। जिस तरह हर रोज रोटी खाते हैं इस तरह दुआ करो। दुआ क्या है? दुआ दरअसल किसी अजीम खादिम ने कहा है, दुआ क्या है? ईमानदार का सांस है, ईमानदार की जिंदगी दुआ है। जिस इंसान की जिंदगी में दुआ नहीं वो अध मुर्दा है, वो मुर्दा हालत में है। उन्हीं के लिए यीशु ने कहा मुर्दों को मुर्दे दफन करने दो, तुम मेरे पीछे आओ। जो यीशु से बातें नहीं करता, जो यीशु से मोहब्बत नहीं करता, जो उसके हुक्मों को नहीं मानता, वो जीते भी मुर्दा ही। तो इसलिए हमें यीशु की मर्जी पूरी करनी है। तो क्या करना है? बिला नागा दुआ करनी है। जो दुआ करता है वो खुदा से बातें करता है और दुआ हमारा रूहानी सांस है। हमारे बदन को सांस की जरूरत है, उसके लिए खुदा ने पैदा की है हवा, मगर हमारे रूह को भी सांस की जरूरत है। और हमारे रूह के लिए जो सांस है वो दुआ है, वो अच्छे काम है, वो निगाहें हैं। जब खुदा की तरफ लगी रहती है हमारा सांस, रूह का सांस चलता रहता है। वरना लिखा है इन लोगों ने अपनी रूहों को मुर्दा कर दिया। हमारी रूह उस वक्त मुर्दा होती है जब हम खुदा से दूर होते हैं। दुआ हमें खुदा से मिलाती है। हालेलुया, आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात, हर एक बात में क्या करो? शुक्र गुजारी करो। किसमें? हर एक बात। और हर बात से मुराद क्या है? दुख में भी और ये नहीं हालात अच्छे हुए शुक्र गुजारियां लाओ, बांटो, ये करो, वो करो। और जब थोड़ी मुश्किल आई तो हिम्मत हार गई। तो हालात कैसे भी हो, चेहरे पे रौनक रहनी चाहिए। किसी के सामने भी जाए खुदा का शुक्र है। कुछ दिनों से खुदा यीशु ने कहा मुझे क्या है? नफरत है। और खुदा को बुज़दिल लोग पसंद नहीं। ये जो जिसने ये खत लिखा है ना, जो पढ़ रहे हैं, इस शख्स का नाम है पौलुस। पहले इसका नाम साउल था। इसने यीशु को कबूल किया। साउल का मतलब है बड़ा। जब इसने यीशु को कबूल किया, कहा मेरा नाम बदल दो, मेरा नाम पौलुस है। पौलुस का मतलब छोटा। कहा जब मैं यीशु से दूर था बड़ा था, अब मैं छोटा हूँ। अब जरूर है यीशु मुझसे बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। ये वो शख्स है जिसने एक कम 40 कोड़े 5 बार खाए, 3 बार बैंक लगे, 39 बैंक लगते, 3 बार इसका जहाज टूटा, तख्तों पर बैठकर पार गया। रोमियो के खत में इसने अपनी जुबान से लिखा, मुंह से बोला है, हाथ से लिखा। फिर 3 बार संसार किया गया, अपनी तरफ से उन्हें मार कर फेंक दिया, मगर फिर बच गया। नंगे पांव रहा, भूखे काटी, मगर दुख में भी कहा खुदा तेरा शुक्र है। हालेलुया। जब अमाल की किताब 16वां बाब पढ़ेंगे, पौलुस जा रहा था, एक औरत में बुरी रूह थी, यीशु ने पौलुस ने झिड़का, निकल यीशु के नाम से, वो निकल गई। उसमें गैब भी नहीं की रूह थी। कौन सी? वो गैब की बातें बताती थी। इब्लीस गैब की बातें भी बताता है, वो गैब की बातें बताती थी और कह रही थी लोगों को ये जो दोनों शख्स जा रहे हैं ये खुदा के बंदे हैं, इनकी सुनो। बात वो अच्छी कर रही थी, मगर पौलुस को बुरी लगी। ये बुरी रूह हमारे बारे में क्यों ऐसा कहे? पौलुस ने मुड़ के देखा, उस औरत से कहा बुरी रूह निकल जा। उसी वक्त उस बुरी रूह से निकल गई। और जो उसके मालिक थे वो उसकी बातों से पैसा कमाते थे, बड़े बड़े प्रोग्राम करते थे। उन्होंने देखा ये तो बुरी रूह निकल गई, हमारा कमाई का जरिया जाता रहा। उन्होंने पौलुस को, सलास को, दोनों को कैद में डलवा दिया। बैंक लगाए गए, फिर कैद में डाल दिया। दोनों कैद में थे। आधी रात का वक्त था, पौलुस उठा, उसको आदत थी आधी रात को उठ के प्रस्तश करना। हालेलुया। खून बह रहा था, कमर में दर्द थी, बैंक लगे थे।
पांव लकड़ी में ठोके हुए थे, शिकंजे में, और क्या कर रहा था? हम्द के गीत गा रहा था, दुआ कर रहा था। हालेलुया। ये शख्स सिर्फ कहता नहीं, अमल भी करता है। दुख में गीत गा रहा है और पकड़ के पूरी जेल को बदल दिया। ताले टूट गए, जंजीरें टूट गई, दरवाजे खुल गए, और वो जो दरोगा था वो जाग गया। उसने कहा कैदी भाग गए। वो अपने आप को मारने लगा कि सुबह बादशाह मुझे मार देगा, अभी मर जाता हूं। पौलुस ने आवाज देकर कहा, भाई अपने आप को नुकसान ना दे, हम सब यही हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वो शख्स है जो सिर्फ कहता नहीं, अमल नहीं करता। इसलिए वो कह रहा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि यीशु मसीह की तुम्हारी बाबत यही मर्जी है। खुदा ने यीशु को अपनी मर्जी के लिए भेजा है, और यीशु ने कहा, मैं बाप की मर्जी पूरी करने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। और थोड़ा सा 2-3 मिनट और है। भाई क्या हुआ जनरेटर को? वोल्टेज नहीं आ रहे? चलें फिर जल्दी करते हैं खत्म। तो आगे लिखा है, देखिए आगे लिखा है, रूह को ना बजाओ, नबूतों की हकारत ना करो, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो पकड़े रहो। ये बहुत बड़ा मजमून है, बहुत कुछ कहना था, मगर आज मैं शॉर्ट करूंगा। रूह को ना बजाओ। एक तो लोगों ने अपनी रूहों को मुर्दा बना रखा। रूह हमारे खिले रहने चाहिए, रूह ताजा रहने चाहिए। रूह को ना बजाओ। लिखा है, खुदा का रूह हमारी रूह के साथ बातें करता है, और जब हम मायूस होते हैं फिर इब्लीस पैदा उठाता है। तो इसलिए ताजे रहेंगे तो खुदा का रूह आपसे बातें करेगा और आप ताजे रहेंगे। हमारी की किताब 2 बार और 39 आयत के करीब है, वहां लिखा है, ईमानदार के लिए 4 बातें बड़ी जरूरी हैं कायम रहने के लिए, जिससे ईमानदार की जिंदगी कायम रहती है। रफाकत रखना, रोटी तोड़ना, दुआ करना और तालीम पाना। ये 4 बातें हमें मसीह में कायम रखती है। ये हमारी जिंदगी में होगी तो हम मसीह में होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ जो बात हमने पढ़ी है, रूह को ना बजाओ, तालीम पाने में पाक रूह से तालीम पाते रहो। कोई भी बात, कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल है, कहें खुदा मुझे समझा, खुदा मुझे बता। खुदा का रूह बताएगा, समझाएगा, तरीका बताएगा, और फिर हमें दलील मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे, तुम्हारी रूहों, जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे बेऐब महफूज रहे। हालेलुया, हालेलुया। ये मर्जी है खुदा की, जब यीशु आए हमारा बदन खड़ा हो जाए। जब यीशु आएगा मुर्दे जी उठेंगे। कौन से? जी उठने का मतलब क़यामत है। क़यामतें 2 है। अब यीशु आने वाला है, तो जो मुर्दे अब जिएंगे वो मुकद्दस होंगे, नेक होंगे। इसके बाद वो मुर्दे उठेंगे जो सजा के लिए उठेंगे। तो यहाँ लिखा है, हमारा बदन, हमारा रूह, हमारी जान पूरे पूरे निजात में दाखिल हो जाए। ये कब होंगे? जब हम हुक्मों पर अमल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बात पर थोड़ा सा और बोलो, शुक्रगुजारी। हमने क्या पढ़ा? हर बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु की तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आज एक शुक्रगुजारी भी आपके लिए। हमारे दरमियान हमारे पड़ोसी भाई नजीर शहजाद नजीर, उन्होंने आज शुक्रगुजारी की है खाने के तौर पर, और अभी थोड़ी देर बाद आपको देंगे। और भाई कह रहे थे कि खुदा ने रहम किया, बच्चों को कामयाबी दी, बेटी डॉक्टर की ट्रेनिंग कर रही है, डॉक्टर बन रही है, पहला साल कंप्लीट हुआ, खुदा मुबारक हो। और फिर चर्च बना, और साथ में कह रहे थे चर्च को देख के भी हमारा दिल खुश होता है। और उन्होंने आज शुक्रगुजारी किया। चर्च की अभी होगी, बड़ी शुक्रगुजारी बाकी है, और ये चर्च कमेटी की तरफ से भी होगी। अभी चर्च का काम बाकी है, रगड़ाई बाकी है, नीचे का ऊपर का काम बाकी है। ये पंखे देख रहे हो है ही नहीं, अभी ये लगनी है, थोड़ा सा काम जरा कंप्लीट हो तो फिर एक बड़ी शुक्रगुजारी होगी, चर्च की शुक्रगुजारी।
मगर आज जो शुक्रगुजारी है ये शहजाद नज़ीर की तरफ से शुक्रगुजारी। तो यहाँ लिखा है हर एक बात में क्या करो, शुक्रगुजारी करो, क्योंकि यीशु मसीह की हमारे लिए यही मर्जी है। हालेलुया। खुदा आज के कलाम के सिरे में बरकत। आइए अपने सोच की आंखें बंद करें। आसमानी बाप जिंदा खुदा पाक खुदा इन लम्हों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा बाप आपने बेटे बेटियां जानकर कलाम किया और ये कलाम जिंदगियों में कायम रहे। इंसान अपनी अकल से आपके कलाम पर अमल नहीं कर सकता। ऐ खुदा रहम कर, जितने आए हैं कोई खाली हाथ न जाए। खुदा तेरा रहम तेरा फजल आज भी फर्दन ये सूरत में देखते। खुदा तेरे बंदा शहजाद नज़ीर को ये सूरत में देखते। ऐ खुदा अपना पाक हाथ बढ़ाना, अपना रहम वाला हाथ बढ़ाना, आज शुक्रगुजारी को कबूल करना। खुदा के बंदा ने तेरे हुजूर अपनी शुक्रगुजारी रखी है। तूने फरमाया जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। खुदा तेरे बेटे ने तुझे इज्जत दी है। खुदा अपनी बंदी पर अपने बंदा पर रहम कर और इस शुक्रगुजारी को कबूल कर और इसके बल को होते यीशु मसीह के नाम में गीत गाएंगे और इसी कुरान अपने हदीये खुदा के कलाम